Assalamu alaikum, dear students. Hopefully you are fine and in good health and you are enjoying your winter breaks. Today I am starting unit number 14. The name of the unit is The Model Millionaire, which means Ek Misali Karodpati. This unit is written by Oscar Wilde and the theme of the unit is generosity, gratitude, compassion. The story revolves around the theme that a person's true character is not measured by their wealth or social status, but by their kindness and generosity. Now, I'm going to start the unit with its translation. At the end of this lecture, I will share you the meanings of the difficult words. Huey Erskine, a French aristocrat, was a soft-hearted, well-mannered and good-looking with brown curly hair and grey eyes. Aristocrat means Ala Khandan, soft-hearted means Narm Dil, well-mannered means Muhazzab and good-looking means Khush Shakal. Brown curly hair means Bhure Gungriyale Baal and grey eyes means Surmai Aankhein. फ्रांसीसी आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला ह्यूई एरिस्किन भूरे घुंघरियाले बालों और सुरमई आँखों वाला नर्म दिल, खुश अखलाक और खुश शक्ल था. He was very popular in his circle because of his good demeanor, gentle heart and unaffected plainness. वो अपने अच्छे रवैये, good demeanor means अच्छा रवैया, वो अपने अच्छे रवैये, जेंटल हार्ट, रहम दिली एंड अनअफेक्टेड प्लेननेस और बेसाख्ता सादगी की वजह से अपने हलके में बहुत मशहूर था. वो अपने अच्छे रवैये, रहम दिली और बेसाख्ता सादगी की वजह से अपने हलके में बहुत मशहूर था. He was once a successful tea merchant. कभी वो चाय का एक कामयाब ताजिर था. But a slump in a tea trade badly affected his business. लेकिन चाय की तिजारत में सर्द बाजारी ने उसके कारोबार को बुरी तरह मुतासर किया. Slump means सर्द बाजारी. Consequently, नतीजे के तौर पर he had to dismantle his trade. उसे अपना कारोबार ख़त्म करना पड़ा. Dismantle means to finish, ख़त्म करना. After that, he tried his luck at everything. इसके बाद उसने हर चीज़ में अपनी किस्मत आजमाई but could not succeed in any business at all. लेकिन वो किसी भी कारोबार में कामयाब ना हो सका. Ultimately, आखिरकार he became nothing but a delightful, ineffectual young man with a perfect profile. आखिरकार वो एक मुकम्मल खाके के साथ एक खुश नाअहल नौजवान के सिवा कुछ न बना एंड नो प्रोफेशन एक्सेप्ट मीगर रिसोर्सेज फ्रॉम हिज फार्म और उसके पास अपने खेतों से मामूली वसाइल के सिवा और कोई रोज़गार ना था. Another predicament, एक और परेशान कुन सूरत हाल. Predicament means परेशान कुन, एक दूसरी या एक और परेशान कुन सूरत हाल that troubled him greatly, जिसने उसे बहुत परेशान किया, was the issue of his unsettled marriage. उसकी गैर मुस्तहकम शादी का मसला था. एक और परेशान कुन सूरत हाल जिसने उसे बहुत परेशान किया, उसकी गैर मुस्तहकम शादी का मसला था. In the heydays of his tea trade, heydays means उरूज के दिनों में, उसकी चाय की तिजारत के उरूज के दिनों में, Huey's mother asked Colonel Martin for the hand of his daughter Laura Martin for her son. उसकी वालदा ने कर्नल मार्टिन से अपने बेटे के लिए उसकी बेटी लॉरा मार्टिन का हाथ मांगा. Seeing the thriving business, thriving business तरक्की करता हुआ कारोबार. Seeing the thriving business of Huey, Huey के तरक्की करते हुए कारोबार को देखकर the colonel readily agreed to give his daughter's hand in engagement. कर्नल मंगनी के लिए अपनी बेटी का हाथ देने के लिए खुशी खुशी राजी हो गया. However,
The consistent fiasco, consistent means मुसलसल, fiasco means नाकामी. However, ताहम, the consistent fiasco of his career in business made the colonel change his mind. कारोबार में उसकी मुसलसल नाकामी ने कर्नल का जहन तब्दील कर दिया. Whenever Huey's mother would approach the colonel for the marriage of her son with Laura Martin, जब कभी ह्यूई की वालदा अपने बेटे की लॉरा मार्टिन के साथ शादी के लिए कर्नल के पास जाती, ही वुड ब्लंटली से, तो वो दो टोक कहता, कम टू मी व्हेन योर सन हैज़ गॉट 10,000 पाउंड्स. जब तुम्हारा बेटा 10,000 पाउंड जमा करे तब मेरे पास आना, एंड वी विल सी अबाउट इट, हम इसके बारे में गौर करेंगे. ह्यूई लुक्ड वेरी ग्लम इन दोज डेज. ग्लम मीन्स गमगीन, उदास, सैड. ह्यूई उन दिनों में बहुत उदास नज़र आता था. एंड वुड ऑफन गो टू हिज फ्रेंड एलन ट्रेवोर फॉर कंसोलेशन. कंसोलेशन मीन्स तसल्ली, और तसल्ली के लिए अपने दोस्त एलन के पास जाता. ट्रेवोर वॉज अ पेंटर एंड फेमस आर्टिस्ट. ट्रेवोर एक मुसव्विर और मशहूर फनकार था. पेंटर मीन्स मुसव्विर, फेमस आर्टिस्ट मशहूर फनकार. ही वॉज अ रियल मास्टर, वो एक असली माहिर था. एंड हिज पिक्चर्स वर ईगरली सॉट आफ्टर, और उसकी तस्वीरें शौक से तलब की जाती थीं. वन मॉर्निंग, एक सुबह, व्हेन ह्यूई केम टू ट्रेवोर्स स्टूडियो, जब ह्यूई ट्रेवोर के स्टूडियो आया, he found him giving finishing touches to a wonderful life-size picture of a beggar man. तो उसने उसे एक फ़कीर की एक हैरान कुन असल तस्वीर को आखिरी दुरुस्तगी देते हुए पाया. Finishing touches means आखिरी दुरुस्तगी. The beggar himself was standing on a raised platform in a corner of the studio. भिखारी खुद स्टूडियो के एक कोने में एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा था. रेस्ड प्लेटफॉर्म मीन्स ऊंचा प्लेटफॉर्म, कॉर्नर मीन्स कोना. भिखारी खुद स्टूडियो के एक कोने में एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा था. He was wizened old man with a face like wrinkled parchment and most piteous expressions. Wizened old man, झुर्रियों ज़दा बूढ़ा आदमी, विद अ फेस लाइक रिंकल्ड पार्चमेंट, चर्मी कागज़ की तरह शिकन ज़दा चेहरा. पार्चमेंट मीन्स चर्मी कागज़. पिटियस मीन्स काबिल तरस. He was a wizened old man with a face like wrinkled parchment and a most piteous expression. वो एक चर्मी कागज़ की तरह शिकन ज़दा चेहरे और इंतहाई काबिल तर्स तासुर के साथ एक झुर्रियों ज़दा बूढ़ा शख्स था. Over his shoulders was flung a coarse brown cloak. Cloak means चुगा, coarse means खुरदरा. उसके कंधों पर एक मोटा खुरदरा चुगा था. All tears and tatters, जो कि सारा फटा हुआ और खस्ता हाल था. His thick boots were patched and cobbled. उसके मोटे जूते पैवन ज़दा और मुरम्मत शुदा थे. Patched means पैवन ज़दा, cobbled means मुरम्मत शुदा. उसके मोटे जूते पैवन ज़दा और मुरम्मत शुदा थे. And with one hand he leaned on a rough stick. और एक हाथ के साथ वो एक सख्त छड़ी पर झुका था. Rough stick means सख्त छड़ी. While with the other he held out his battered hat for arms. Battered hat means फटी हुई टोपी. जबकि दूसरे हाथ से उसने खैरात के लिए अपनी फटी हुई टोपी पकड़ी थी. जबकि दूसरे हाथ से उसने खैरात के लिए अपनी फटी हुई टोपी पकड़ी थी. So dear students, I am stopping here. Now I am sharing you the meanings of the difficult words, and from the next paragraph I will start from the next lecture. Till then I am stopping here.
Stay blessed and Allah Hafiz.